Welcome back. And today is the fourth lecture, and it's your second week for your grammar revision lectures. And here we are starting today with tenses. Once again, very much in detail. So let's move ahead with the various tenses. You already must be knowing that total we have 12 tenses, and this in different formats I have shown you, that is different charts are shown to you related to tenses. Now the one that you find it very much acceptable, very much easy, I would say, you can pick up that part of the tenses, and many sentences, solved examples, many exercises also are provided to you, just like we did in the previous videos of parts of speech like conjunction and coordinating conjunction, subordinating conjunction, correlative conjunctions, and about compound complex forms and various other things about the parts of speech we had done. और उसमें भी हमने काफी सारे MCQ solve किए, many other sentences we had solved. So same format I'll be providing to you over here for your practice. So let's start. Now 12 tenses. First of all, again, I want to tell you one more important thing over here is that this tenses do it so very perfectly. Lecture में तो मैंने कहा ही था, day before, like that is just 2 days back on Saturday, I told you about it. But once again, I repeat over here, that is going to be very much helpful to you lifelong. Next, lifelong तो बाद में, उसके पहले in your current standard is going to be applicable in your next standard, in your direct indirect speech, in your various tenses, when you speak, when you are trying to speak in English, of course, or when you are speaking in English, या ट्राई कर रहे हो या बोल रहे हो अच्छे से, तब भी कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जाए. फॉर दैट टेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू आर फ्रेमिंग एन ईमेल और लेटर, तो जब तुम मेल कर रहे हो तो वहां पे भी there'll be many such things where ahead in your 11th 12th or the other standards, furthermore when you're moving ahead, or your college, universities and all, you never know where this part is, where English is going to be of much help to you. I would say tenses is the most important. And तुम या तो इंग्लिश में बोल रहे हो या लिख रहे हो या किसी को कुछ समझा रहे हो, तो tenses of course is very important. You can't jumble up present, past, future in one single sentence itself. तो प्लस एट प्रेजेंट मार्क्स स्कोर करने के लिए तो ऑब्वियसली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ यू हैव प्रेजेंट, simple present, simple past, simple future, then you have present continuous, then you have past continuous, future continuous, फिर होगा present perfect, past perfect, future perfect, then you have present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. तो यहां तक हम अभी कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, अब सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है या सिंपल फ्यूचर है, हर एक के मैंने 3 फॉर्म्स बताए. हाउ विल यू कैरी आउट, और यू विल अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला, और उसके ऊपर एक हम सेंटेंस भी फ्रेम करेंगे. एग्जाम्पल यहाँ पे दिए, उसका स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला यहाँ पे, और ये टेंसेस हैं. तो सिंपल प्रेजेंट में 3 टाइप होंगे, प्लस माइनस क्वेश्चन, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन फॉर्म. अब सब्जेक्ट मतलब, वंस अगेन लिसन वेरी केयरफुली, सब्जेक्ट जब भी मैं एक्टिव पैसिव कर रहा हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहा हूं, तो एस दैट इज सब्जेक्ट, मतलब दी डूअर, जो एक्शन कर रहा है उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट. अच्छा, सिंपल प्रेजेंट में हमेशा सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट वर्ब फॉर्म ही होगा, मतलब बेस. देखो वर्ब के 3 फॉर्म होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. अब फर्स्ट को हम कहेंगे द बेस फॉर्म, राइट, जैसे रीड या रीड्स. फिर उसका सेकंड होगा पास्ट, और थर्ड होगा परफेक्ट, या तुम कहते हो पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड वर्ब फॉर्म, राइट, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं एक्टिव पैसिव में, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, थर्ड वर्ब फॉर्म. तो पहले यहां पे सीख लो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी है,
तो पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, सो इट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट। तो सब्जेक्ट ऑलवेज हो गए, प्लस फर्स्ट वर्ब फॉर्म, मतलब रीड या रीड्स, राइट? या तो एस लगाओगे या ई एस, एज द केस में बी। अब सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट आई यू वी दे है, तो आई रीड, यू रीड, वी रीड, दे रीड, तो एस नहीं होगा। द मोमेंट इट इज ही शी इट, it becomes reads. We add s और es as the case may be। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिया ही, तो he reads, she reads, it reads, लेकिन he की जगह पे अगर सब्जेक्ट होता आई यू वी दे तो ये s हम निकाल देते। अब उसी को अगर नेगेटिव बनाना है तो नेचुरली वंस अगेन रीज की जगह पे s निकाल के हम लगाएंगे डज। आ गया ई एस, डज, और फिर रीड, रीड ही रहेगा, एस निकाल देंगे। ही डज नॉट रीड अ बुक डेली। अब जब क्वेश्चन बनाना है तो ऑफकोर्स आई यू वी दे के साथ डू, ही शी के साथ डज, बिकॉज आई यू वी दे के साथ नो एस, ही शी के साथ एस, कंप्लीट एक्शन है। अगर हम उसी को नेगेटिव में लिख रहे हैं तो कंप्लीट एक्शन को जैसे वैसे ही रखो, नो एस एंड ई एस, बट हम लगाएंगे ही शीट के साथ डज। आई यू वी दे होता तो डू, आई डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, यू डू नॉट, बट ही शीट है तो ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट। फिर एक बार ई एस लगाया तो कंप्लीट एक्शन का एस निकाल देंगे, राइट? अब उसी को क्वेश्चन बनाएंगे तो डज, आगे डज ले लो एंड ब्रिंग ही ओवर योर, नेगेटिव वर्ड तो नेचुरली हमें नहीं लगाना है, इट्स ओनली इन नेगेटिव सेंटेंस ये फॉर्मेट होगा। अब क्वेश्चन है तो वंस अगेन डज ही रीड अ बुक डेली, राइट? बट इफ इट इज सब्जेक्ट की जगह पे आई है तो डू आई रीड, डू यू रीड, डू वी रीड, डू दे रीड। ही शीट है तो डज ही रीड, डज शी रीड, डज इट रीड, राइट? प्रेजेंट टेंस है तो रीड। नाउ सिंपल पास्ट, तो स्पेलिंग वही होगी, रीड और रेड, प्रेजेंट और पास्ट स्पेलिंग सेम है, सिर्फ हम बोलेंगे अलग तरीके से, प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। प्रेजेंट टेंस में आर ई ए डी रीड होगा, पास्ट टेंस में आर ई ए डी को कहेंगे रेड, नॉट लाल कलर, इट इज रेड, राइट? He read, she read, it read. The moment it is past tense, तो आयु विधे के लिए भी सेम रहेगा। यहाँ पे आयु विधे के लिए सब्जेक्ट अगर अलग है, आयु विधे कोई है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, देल बी, जब हमने बहुत इनिशियली जब प्रीवियस लेक्चर्स में वीडियोस में पार्ट्स ऑफ स्पीच किया था, वहां पे प्रोनाउन मैंने दो कॉलम बना दिए थे, एक था आई यू वी दे वाला कॉलम और एक था ही शी इट। तो आई यू वी दे के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब जाएंगे वो ही शी इट के साथ नहीं होंगे। जैसे कंप्लीट एक्शन भी ले लो तो भी वही, ही रीड्स बट आई रीड, तो आई यू वी दे एक ग्रुप ऑफ प्रोनाउन जिसके साथ सेम एक्शन वर्ब सेम हेल्पिंग वर्ब जाएंगे। ही शी इट एक अलग ग्रुप है जिसके साथ सेम हेल्पिंग वर्ब या सेम फॉर्मेट ऑफ एक्शन वर्ब, कंप्लीट एक्शन। तो जैसे ही शीट के साथ डज, बट आई यू वी दे के साथ डू, राइट? नाउ सिमिलरली यहां पे, बट द मोमेंट इट इज पास्ट, तो ये सबके लिए सेम होगा, सबके लिए सेम फॉर्मेट। आई यू वी दे ही शी इट रेड अ बुक, आई यू वी दे ही शी इट डिड नॉट रीड अ बुक। अब यहां पे क्यों मैंने बोला रेड, यहां पे आ जाएगा वाई प्रेजेंट टेंस एक्शन, क्योंकि हमने यूज किया डिड, और डिड के साथ पास्ट एक्शन नहीं यूज करते। ही डिड नॉट रेड, नो ही डिड नॉट रीड। चलो कोई और देख लेते हैं, परचेज्ड, ही डिड नॉट परचेज, ईडी निकाल देंगे क्योंकि डिड है, हम ऐसे नहीं लिखेंगे ही डिड नॉट परचेज्ड,
तो डिड के साथ ऑलवेज प्रेजेंट एक्शन। अब यहाँ पे क्योंकि रीड और रेड की स्पेलिंग सेम है तो याद रखना प्रेजेंट टेंस में उसे बोलेंगे रीड, पास्ट में कहेंगे रेड। तो यहाँ पे ही शी इट के साथ रीड्स, आयु वीदे के साथ रीड। नेगेटिव है तो डज और क्वेश्चन में भी डज, और आयु वीदे है तो डू, राइट। सिमिलरली पास्ट टेंस है तो आई यू वी दे ही शी इट, डिड नॉट, लेकिन एक्शन होगा हमेशा प्रेजेंट टेंस, याद रखना। यहाँ पे सेम स्पेलिंग है तो यू डोंट थिंक कि डिड के साथ मैंने रेड लिखा है, डिड के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस, इसलिए रीड। डिड ही रीड अ बुक येस्टरडे, डोंट से डिड ही रेड अ बुक येस्टरडे, राइट। डिड ही रीड अ बुक येस्टरडे। सिमिलरली वी मूव ऑन टू नाउ सिंपल फ्यूचर। अब विल और शैल किसके साथ कैसे यूज करेंगे, तो आई और वी, जहां पे मैं हूं, मतलब तुम अगर तुम्हारी बात करो तो जहां पे तुम हो खुद से जब बात करते हो तो वेर आई एम प्रेजेंट, वेर एम आई प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट इन आई, आई एम ऑल्सो प्रेजेंट व्हेन आई से वी, क्योंकि वहां पे मैं हूं वी में, राइट। तो आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, राइट। यू ही शी इट, रिमेंबर इट। तो सिंपल फ्यूचर अगर एफर्मेटिव है तो ही विल रीड अ बुक टुमारो, ही विल नॉट रीड अ बुक टुमारो। अब नॉट निकाल दो, विल को आगे ले लो, विल ही रीड अ बुक टुमारो। सिंपल फ्यूचर उसमें भी रीड नॉट रेड, क्लियर। नाउ अब आ जाते हैं प्रेजेंट के नेक्स्ट फॉर्म में। सिंपल प्रेजेंट क्या है, नाउ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस। शी इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, लेकिन अगर आई आ गया तो इट इज आई एम रीडिंग अ बुक, लेकिन अगर वी आ गया तो वी आर रीडिंग अ बुक, दे आर रीडिंग अ बुक। तो प्लूरल के लिए आर, कंटिन्यूअस में आई के लिए एम, और बाकी सबके लिए इज। शी इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, इट इज रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, वी आर रीडिंग अ बुक, दे आर रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग अ बुक, यू के साथ भी आर। तो फर्स्ट वर्ब फॉर्म होगा प्लस उसको लगा दो आईएनजी। परचेज है तो परचेजिंग, रीड है तो रीडिंग, रेडिंग नहीं रीडिंग, कम है तो कमिंग, कुक है तो कुकिंग। लेकिन सब्जेक्ट के साथ देखना है कि प्रोनाउन, ये डूअर कौन है, राइट, क्लियर। नाउ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव है तो आगे नॉट लगा दो, और अगर क्वेश्चन है तो नॉट नहीं लगाएंगे, सिंपल ही आगे था, यहां पे हम इसको आगे ले आएंगे, राइट, और ये ऊपर चला जाएगा। तो इज ही रीडिंग अ बुक, तो ये नॉट कैंसिल कर देंगे, क्लियर। और नेक्स्ट पास्ट प्रोग्रेसिव, वही वॉज या वर, आगे हमने क्या किया था, इज एम या आर, यहाँ पे सेम वॉज या वर, पास्ट में पास्ट कंटिन्यूस। तो सब्जेक्ट क्या है, अगर ही है तो ही वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक, प्लूरल सबके लिए वॉज, सिर्फ प्लूरल में वर, वी वर रीडिंग अ बुक, दे वर रीडिंग अ बुक, और यू है तो यू वर रीडिंग अ बुक, यू कैन से यू वॉज रीडिंग अ बुक। ही शी इट सिंगुलर वॉज, यू सिंगुलर है तब भी वॉज नहीं, इट विल बी वर। प्लूरल दे वी के लिए वर, और आई यहाँ पे आई वॉज, प्रेजेंट था तो आई एम, पास्ट में आई के साथ वॉज। तो फर्स्ट री प्लस आईएनजी, सेम लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस, सिर्फ ऐड करना है वॉज या वर। अगेन नेगेटिव है तो नॉट लगा दो, और अगर क्वेश्चन है तो सिंपल हम ये हेल्पिंग वर्ब को आगे लेंगे जिससे क्वेश्चन बनाते हैं, सब्जेक्ट को उसके पीछे डाल देंगे, नॉट तो लगाना है नहीं क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन नहीं बोला है,
यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस हम नेगेटिव बना रहे हैं, जस्ट फॉर योर सिंपल अंडरस्टैंडिंग. अब सो वॉज ही रीडिंग अ बुक yesterday? नाउ फ्यूचर. फ्यूचर में विल या शैल. अब यहां पे क्योंकि हम कंटिन्यूस बना रहे हैं इसलिए बी ई फॉर्म आएगा. ही विल बी रीडिंग अ बुक, शी विल बी रीडिंग अ बुक, आई शैल बी रीडिंग अ बुक, वी शैल बी रीडिंग अ बुक, दे विल बी रीडिंग अ बुक. तो हर एक में विल तो होगा ही, सिर्फ आई या वी है तो शैल. बाकी सिंपल सेम फॉर्मेट प्लस बी ई एंड आई एन जी. राइट. फ्यूचर प्रोग्रेसिव में अगेन नॉट लगाना है, सिंपल. लेकिन अगर फ्यूचर प्रोग्रेसिव में क्वेश्चन है तो यही हेल्पिंग वर्ब जिससे हम क्वेश्चन बनाते हैं आगे, सब्जेक्ट उसकी जगह पे. नॉट तो बनाना है नहीं, हमें नेगेटिव क्वेश्चन नहीं बनाना है, सिंपल. विल ही बी रीडिंग अ बुक टुमारो? क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू परफेक्ट. So in the same way over here we move ahead with perfect. Now the moment you hear the word perfect, it means H word. It could be has, have or had. But has or have we will use for present perfect, और had हम use करेंगे for past perfect. Right. अब once again, just as हमने S word DOES, he does, she does, it does, उसी तरह से S word H के साथ. Right. He has, she has, it has. But the moment it is I, you, we, they, it was I do, you do, we do, they do. I have, we have, they have. Right. So he, she, it के साथ has, I, you, we, they के साथ have. उस तरह से जो सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से हमें हैज या हैव पिकअप करना है इफ इट इज परफेक्ट बट प्रेजेंट परफेक्ट. और एफर्मेटिव है तो ही हैज read a book because once again with this H word फिर वो has हो. right, whether it is has, have or had, ये तीनों के साथ the verb form will be always third verb form. Right, that is read, 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 purchase, purchased, purchased, ed, ed. कई बार सेकेंड और थर्ड वर्ब फॉर्म सेम हो जाते हैं, कई बार अलग होते हैं, कई बार तीनों की स्पेलिंग सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन अलग होंगे. लाइक रीड, रेड सेकेंड वर्ब फॉर्म पास्ट, और परफेक्ट दैट इज पास्ट पार्टिसिपल थर्ड वर्ब फॉर्म आल्सो विल बी रेड. स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट. पास्ट और परफेक्ट का सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम वर्ड, सिंपल उसी तरह से, और प्रेजेंट का अलग होगा. रीड स्पेलिंग सेम है. उसी तरह से परचेज, परचेज्ड ईडी, परचेज्ड ईडी. तो फर्स्ट वर्ब फॉर्म हुआ प्रेजेंट टेंस परचेज, सेकेंड वर्ब फॉर्म हुआ ईडी लगाया पास्ट टेंस, थर्ड वर्ब फॉर्म भी परचेज्ड है. बट what is important in this third verb form is your this H word, H word. So has, have, present perfect, had, past perfect, उसके साथ हम लगाएंगे third verb form that is purchased. कई बार थर्ड वर्ब फॉर्म अलग हो जाएगा लेकिन H तो होगा ही वहां पे. फॉर एग्जाम्पल come, came, come. You come, you came, you had come. Right? I come, I came, I had come. तो come, came, come. First verb form present, second verb form past, third verb form H word के साथ. present है तो has या have, past है तो had, उसके साथ लगाना होगा थर्ड वर्ब फॉर्म. राइट. सो कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, आई गो, यू गो, वी गो, दे गो. तो आई, यू, वी, दे के साथ सेम. ही, शी, इट के साथ ही गोज, शी गोज, इट गोज, एस वर्ड. राइट.
डू डज है तो उसी तरह से आई यू वी दे डू, ही शी इट डज, एस। नाउ उसी तरह से आई यू वी दे हैव, ही शी इट हैज, एस। सबके लिए पास्ट में सेम, आई यू वी दे ही शी इट हैड, आई यू वी दे ही शी इट डिड, राइट, डी वर्ड। सो नाउ गो वेंट गॉन, आई गो, फिर वेंट, सेकेंड वर्ब फॉर्म पास्ट, आई वेंट, थर्ड वर्ब फॉर्म आई हैड गॉन, सो गो वेंट गॉन, फर्स्ट वर्ब फॉर्म, सेकेंड वर्ब फॉर्म, थर्ड वर्ब फॉर्म। उसी तरह से यहां पे हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज या हैव एज पर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पे ही बताया है तो ही हैज रेड, थर्ड वर्ब फॉर्म। अगर शी है तो शी हैज रेड, आई है तो आई हैव, वी ई, आई हैव रेड, दे हैव, राइट, यू हैव एंड वी हैव रेड अ बुक, थर्ड वर्ब फॉर्म इसलिए रेड। नेगेटिव है तो नॉट लगा दो, क्वेश्चन है तो ही शीट है तो आगे हैज लगाओ, आई यू वी दे है तो हैव आई रेड अ बुक, हैव वी रेड अ बुक, हैज शी रेड अ बुक, हैज ही रेड अ बुक, हैज इट रेड अ बुक। बट पास्ट परफेक्ट है तो सबके लिए हैड, आई यू वी दे ही शी इट हैड रेड अ बुक। और क्वेश्चन भी हैड आगे ले लो, बाद में हैड आई यू वी दे ही शी इट, had he read a book, had I read a book, any. But third verb form the moment you see had, has या have, नेगेटिव है तो नॉट लगाना है। अब आते हैं द लास्ट पार्ट, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट, राइट, अब फ्यूचर के सारे करते हैं, मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो हैज, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट, हैड, पास्ट परफेक्ट, सबके साथ थर्ड वर्ब फॉर्म। द मोमेंट यू यूज द वर्ड परफेक्ट इट मींस एच वर्ड प्लस थर्ड वर्ब फॉर्म। फ्यूचर में एक वर्ड एक्स्ट्रा लगाएंगे, विल या शैल। ही विल हैव रेड अ बुक, शी विल हैव रेड अ बुक, आई शैल हैव रेड अ बुक। जहां पे मैं हूं, आई और वी में मैं हूं तो वहां पे शैल होगा, वी शैल हैव रेड अ बुक। तो हैव सबके लिए कॉमन, यहाँ पे विल या शेल बदलेंगे, आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ ही। नेगेटिव है तो नॉट लगा दो। द मोमेंट इज अ क्वेश्चन, सब्जेक्ट के हिसाब से अगर यहाँ पे आई है, शैल आई हैव रेड अ बुक, और बाकी वी शैल वी हैव रेड अ बुक, बाकी सबके लिए विल ही हैव रेड अ बुक। ठीक है, नेक्स्ट अब आएंगे लास्ट पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यहां पे क्या था, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तो फ्यूचर का विल या शैल एज पर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई यू वी दे नहीं। यहाँ पे क्या देखेंगे फ्यूचर में, बाकी सबके लिए आई यू वी दे है तो डू, ही शीट है तो डज, आई यू वी दे तो हैव, ही शीट है तो हैज। यहाँ पे आई और वी जहां पे मैं हूं उसके साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, उस हिसाब से सब्जेक्ट के बाद वो होंगे। कंपल्सरी हैव सब में होगा फ्यूचर में, राइट, प्लस थर्ड वर्ब फॉर्म बिकॉज इट इज परफेक्ट। नेगेटिव है तो नॉट लगा दो, फ्यूचर परफेक्ट क्वेश्चन है तो वो विल शैल को आगे डाल दो, पीछे रखो सब्जेक्ट एंड देन कंटिन्यू। नाउ इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब सब्जेक्ट सपोज इट इज आई या वी, राइट, ही शीट नहीं है, आई यू वी दे में से एक ले लो आई। फिर क्या है, प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट लेकिन प्रेजेंट, तो हैज या हैव, तो आई हैव। कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट वर्ब फॉर्म एडजेक्ट आईएनजी। But the moment you use continuous means we have to use been. I have been reading a book. She has been. I you be there to have. He she है तो has. Been compulsory क्योंकि हम लगाएंगे continuous, और has या have क्योंकि present perfect है। यहाँ पे past आ जाएगा तो आई यू वी दे ही शीट, कोई भी सब्जेक्ट हो कॉमन होगा had। ठीक है, लाइक पास्ट परफेक्ट, आई यू वी दे ही शी इट हैड, आईएनजी कंटिन्यूअस तो परफेक्ट का हैड।
प्रोग्रेसिव का आईएनजी, बट क्योंकि आईएनजी आई विल ऐड बी डबल ई एन, बीन. आयु दे ही शी इट हैड बीन रीडिंग अ बुक. ठीक है, नेगेटिव है तो नॉट लगा दो. और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है तो हमेशा सब्जेक्ट बाद में और हेल्पिंग वर्ब जिससे क्वेश्चन बनाते वो आगे. अगर ही की जगह पे आई होता तो मैं लिखती हैव आई बीन, HAVE. आई वी दे तो हैव, ही शीट है तो हैज, पास है तो सबके लिए हैड. यहाँ पे आई यू वी दे ही शीट कुछ भी हो हम लगाएंगे क्वेश्चन में हैड. बाकी तो BEEN बीन प्लस फर्स्ट वर्ब फॉर्म that is present tense plus verb plus ing. अब लास्ट पार्ट फ्यूचर परफेक्ट प्लस माइनस क्वेश्चन, एफर्मेटिव नेगेटिव क्वेश्चन मार्क. अब सब्जेक्ट सपोज इट इज वी, तो वी के साथ क्या होगा शैल. आई होता तो शैल, बाकी सबके साथ विल. अब क्या है यहाँ पे फ्यूचर, तो अगर मैं वी लगाती हूँ तो वी, फिर फ्यूचर का शैल, परफेक्ट का हैव, प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस एक्शन प्लस आईएनजी, और क्योंकि आईएनजी आई विल ऐड बीन. वी शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक. अब ही शीट है तो विल, ही शी इट प्लस और कौन होगा यू. सिर्फ आई और वी के लिए शैल, बाकी सबके लिए विल. तो ही है तो विल, ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक. She will have been, it will have been, you will have been, I shall have been, we shall have been reading a book. Clear? नेगेटिव है तो नॉट लगा दो. बाकी क्वेश्चन में वो ही जिससे क्वेश्चन बनाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर सब्जेक्ट एंड देन द रिमेनिंग पार्ट हैव बीन वाला. सो फर्स्ट वर्ब फॉर्म मतलब बेस फॉर्म प्रेजेंट टेंस, फिर उसका होगा पास्ट टेंस, दैट इज सॉरी यहाँ पे होगा सेकेंड. और ये है थर्ड वर्ब फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल. और जहां पे भी हम डॉट 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 बता रहे हैं मतलब रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कंटिन्यू पूरा नहीं लिखा है. अब उसी तरह से एक सेकेंड वे वेर आई एम एक्सप्लेनिंग यू द सेम थिंग. लेट्स गो ओवर अ बिट इन शॉर्ट, क्योंकि बहुत डिटेल में हमने 8 टेंसेस 12 टेंसेस किए, यहाँ पे भी 12 है. अब अलग अलग तरीके से मैं बता रही हूँ, तो जो टेबल फॉर्म तुम्हें ठीक लग रहा है यू कैन पिक दैट अप. अगर पहले वाला जो मैंने किया वो ठीक लग रहा है वो पिकअप करो. तुम्हें लग रहा है नहीं दिस इज इजी फॉर मी, बट फर्स्ट गो थ्रू ऑल, तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा. ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होगा. तो वो एक ग्रामर की स्पेलिंग तुम स्मॉल लिखो GRAMMAR, या तुम कर्सिव में लिखो, या तुम कैपिटल में लिखो, या तुम इटैलिक्स में लिखो, कोई भी फॉन्ट पिकअप कर लो, कैलिब्री और वॉट एवर, बट इट विल ग्रामर का मीनिंग ग्रामर ही रहेगा. वैसे तुम प्रेजेंट कोई भी फॉर्म में लिखो वो मतलब वो ही रहेगा. तो यहाँ पे मैंने 4-5 अलग अलग तरीके से या 3-4 अलग अलग तरीके से मैंने 12 टेंसेस सिखाए हैं, चार्ट अलग अलग फॉर्म में बताए हैं, है वो ही सिंपल पास्ट, फ्यूचर, सिंपल परफेक्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट and future, then present perfect, past perfect, future perfect, and continuous and perfect continuous. टेबल सिर्फ हमने अलग तरीके से उसको कपड़े पहनाए. अब जो सबको सब कपड़े पसंद नहीं आते, किसी को लाल, किसी को नीला, किसी को पीला, किसी को हरा, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, वॉट एवर, यू पिक अप द वन दैट यू लव, राइट. तो लेट्स स्टार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब देखो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल वाला बताया. सब्जेक्ट सिंगुलर से आई, हम यहाँ पे लेंगे चलो ही शी इट, तो उसके साथ फर्स्ट वर्ब फॉर्म एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन प्लूरल है, लाइक वी, दे, तो हम वर्ब फॉर्म में एस या ES नहीं लगाएंगे, उसमें आ जाएगा. तो मैंने बताया था आई यू वी दे, उसमें आई और यू भी इंक्लूड होंगे, तो वर्ब फॉर्म में एस नहीं लगाएंगे. इट्स ओनली सिंग, यहाँ पे इज सिंग्स, राइट. ही शी इट सिंग्स, गर्ल सिंग्स, बॉय सिंग्स, इट सिंग्स, वी सिंग, आई सिंग, यू सिंग, दे सिंग. तो प्लूरल के साथ हम आई और यू भी अटैच करेंगे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था 2 डिफरेंट ग्रुप्स. आई यू वी दे एक वर्ब जाएगा स्ट्रेट एंड ही शीट के साथ अलग जाएगा.
नेक्स्ट, पहले हमने किया सिंपल प्रेजेंट टेंस, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इट इज, या तो तुम इज लगा दो सब्जेक्ट के साथ, ही इज, शी इज, इट इज। आई है तो एम लगाओ, प्लूरल है तो आर लगाओ, और यू के साथ भी आर, प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्रेजेंट टेंस आईएनजी लगाओगे उससे, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट वॉट एवर। शी इज ईटिंग अ फूड, आई एम ईटिंग अ फूड, दे आर ईटिंग अ फूड, यू आर ईटिंग अ फूड। क्लियर? नेक्स्ट, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब एच वर्ड। अब उसमें ही शीट है तो हैज, आई यू वी दे है तो हैव, राइट। जैसे मैंने कहा हर बार प्लूरल में सिर्फ दे या वी नहीं होगा, आई और यू भी अटैच करेंगे। तो ही शी इट है सब्जेक्ट की जगह पे, उसमें हम लगाएंगे हैज, और एच के साथ ऑलवेज प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस, यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं परफेक्ट। तो परफेक्ट मतलब एच वर्ड, उसके साथ हमेशा थर्ड वर्ब फॉर्म। ही हैज क्लीन्ड, शी हैज क्लीन्ड, इट हैज क्लीन्ड, आई यू वी दे हैव क्लीन्ड। क्लियर? तो एस, नो एस, हैज, हैव। क्लियर? क्योंकि परफेक्ट है इसलिए एच, और प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए ही शीट के साथ हैज, आई यू वी दे के साथ हैव। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ही शीट है तो हैज बीन, आई यू वी दे है तो हैव बीन, प्लस वर्ब आईएनजी, राइट, बेस वर्ड प्रेजेंट टेंस। लेट्स सी सम सिंपल एग्जांपल्स। राज, ही शीट है, स्पीक्स जर्मन, दे स्पीक जर्मन। तो आई यू वी दे है तो स्पीक, ही शीट है तो है एस, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर, सिंपल प्रेजेंट प्लूरल। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी इज स्पीकिंग, ही शी इज स्पीकिंग। अब यहां पे अगर प्लूरल है तो वी आर स्पीकिंग, दे आर स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग। बट ही शीट है तो इज। उसी तरह से परफेक्ट लेते हैं, ही शीट है तो हैज, और थर्ड वर्ब फॉर्म लर्न, लर्नड, लर्नड, और आई यू वी दे है तो हैव, थर्ड वर्ब फॉर्म। और उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, ही शीट है तो हैज बीन आईएनजी, और आई यू वी दे तो हैव बीन आईएनजी। प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। तो यहाँ पे एथ क्यों नहीं है? बिकॉज ये वन इज जस्ट स्किप्ड ऑफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई यू वी दे कोई भी, ये ही शीट के साथ इज आईएनजी, आई यू वी दे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आर मतलब प्लूरल में आर आईएनजी, आई है तो आई एम स्पीकिंग जर्मन, सो ही शी इट इज स्पीकिंग जर्मन। यू आर, वी आर, दे आर स्पीकिंग जर्मन, आई है तो आई एम स्पीकिंग जर्मन। तो एक यहाँ पे एथ वन, मतलब यहाँ पे फोर्थ, फिर 5 6 7 8, तो हर एक के 8 पार्ट्स आएंगे एज एग्जाम्पल्स, राइट। एंड द नेक्स्ट इज पास्ट टेंस। सो लेट्स मूव अहेड विद पास्ट, और फिर एक होगा फ्यूचर। तो पास्ट ओवर ईयर विल बी सिंपल पास्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? आई यू वी दे ही शीट। कोई भी यहाँ पे जैसे मैंने कहा था हर बार पास्ट होगा तो आई यू वी दे ही शीट के लिए सेम होगा। आई रैन, यू रैन, वी रैन, दे रैन, ही रैन, शी रैन, इट रैन। तो वर्ब सेम रहेगा, कोई एस या एस लगाना है, ई एस नहीं लगाना है, ये है वो है कुछ नहीं। डिड है तो सबके लिए आई यू वी दे ही शी इट डिड, आई यू वी दे ही शी इट हैड। तो डी फॉर्म पास्ट टेंस सब सब्जेक्ट के लिए सेम। सो लेट्स सी, ही रैन अवे, सिंपल पास्ट। अब अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज या वर प्लस आईएनजी सबके लिए। आई वॉज रनिंग, शी वॉज रनिंग, ही वॉज रनिंग, इट वॉज रनिंग, दे वर रनिंग, यू वर रनिंग, वी वर रनिंग। ठीक है, उस तरह से यहां पे परफेक्ट, परफेक्ट के लिए सबके लिए कॉमन हैड। I had, you had, we had, they had, he had, she had, it had, third verb form, left the job। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट का हैड, कंटिन्यूस का आईएनजी, परफेक्ट का तो पास्ट परफेक्ट का हमने तो हैड लगा दिया, बट बिकॉज उसके साथ आईएनजी है हम लगाएंगे बीन। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया था, हैज बीन, हैज, हैव बीन,
प्लस आईएनजी, उसी तरह से पास्ट में सबके लिए, पास्ट परफेक्ट में आई यू वी दे ही शी इट हैड बीन, present tense, that is base word plus ing. So I had been preparing food, she had been, he had been, it had been, कोई भी हो subject, it will be had been plus prepare first verb form plus ing, आगे ऐड कर लो जो भी ऑब्जेक्ट है. सो यहाँ पे 5 ही दिए, यू कैन अकॉर्डिंगली मेक ऑन योर ओन ऑल्सो नाउ ऑल 8. आई प्लेड फुटबॉल, वी प्लेड, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए सेम है. I, you, we, they, he, she, it played, simple past. अब past continuous तो ing लगाएंगे. I was, he was, it was, she was, लेकिन you are, we, sorry, were, you were, we were, they were, तो प्लूरल में अलग हो जाएगा जैसे यहाँ पे दिया, और सिंगुलर में अलग. बाकी तो ing लगाना ही है सब में. अब पास्ट परफेक्ट तो सबके लिए हैड, दे हैड, आई यू वी दे ही शी इट हैड. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट का हैड सबके साथ, इसीलिए 5 ही दिए यहाँ पे. अच्छा, आईएनजी कंटिन्यूअस का तो पास्ट परफेक्ट का सबके लिए कॉमन हैड, कोई भी सब्जेक्ट, आई यू वी दे ही शी इट हैड. कंटिन्यूअस का आईएनजी टू द बेस वर्ब प्ले को प्लेइंग, फर्स्ट वर्ब फॉर्म प्ले उसको लगा दो प्लेइंग आईएनजी, क्योंकि ing had been. So I, you, we, they, he, she, it had been ing. Simple. Now we move ahead to future, simple future. So let's see. Subject जो भी है, तो यहाँ पे I will दिया है. I would always insist for. I और we के साथ shall, बाकी सबके साथ will. तो हम यहाँ पे लेंगे I shall, we shall, फिर कोई भी सब्जेक्ट हो तो will. तो चलो लिखते हैं आई शैल विजिट माई अंकल टुमारो. सिंपल फ्यूचर. अगर ही है कोई और है तो ही विल विजिट हिज अंकल टुमारो. फिर फ्यूचर कंटिन्यूस सेम फॉर्म, आईएनजी आया मतलब आगे बी ई फॉर्म लगाना होगा. आई शैल बी विजिटिंग, वी शैल बी विजिटिंग, बट बाकी सबके साथ विल बी विजिटिंग. अब परफेक्ट मतलब हैव तो आना ही है, यहाँ पे हैज नहीं होगा, विल हैव, शैल हैव. और क्योंकि थर्ड वर्ब फॉर्म आ गया, कब, क्योंकि यू हैव परफेक्ट. द मोमेंट परफेक्ट इन एनी टेंस परफेक्ट मतलब एच वर्ड. फिर सिंपल पास है तो हैड, प्रेजेंट है तो हैज या हैव, और फ्यूचर परफेक्ट है तो कंपल्सरी हैव, क्योंकि आगे हम लगा रहे हैं विल या शैल. और थर्ड वर्ब फॉर्म कंपल्सरी विथ ऑल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, perfect continuous, perfect continuous, perfect continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. The moment perfect word मतलब थर्ड वर्ब फॉर्म होना ही है. ठीक है, तो we shall have done the work, you will have done the work, she will have, he will have, it will have, I shall have done the work. तो I और we के साथ shall have और थर्ड वर्ब फॉर्म. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तो जैसे ही फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर का विल या शैल, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर फ्यूचर का विल या शैल. परफेक्ट का कंपलसरी हैव, क्योंकि फ्यूचर है तो हैज हैड नहीं देखना है. कंटिन्यूस का आईएनजी बेस वर्ड, फर्स्ट वर्ब फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि आईएनजी इसलिए BEEN, बीन, शी विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015. Some examples go through. She will go to school tomorrow. She will be going to school tomorrow. She will have gone to school tomorrow. She will have been going to school tomorrow. Now the third form we do in the next video. So till then, just revise the two form of tables, or AKA or easy form with still more new format, new examples, which we'll do in the next video. So thank you so much.